Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about hypothermia in a newborn. So whenever we are taking care for a child, the first step we have to maintain is temperature in a newborn. ठीक है? So what is the normal temperature for a newborn? Normal temperature is 36.5 degree Celsius to 37.5 degree Celsius. This is the normal temperature for a newborn. Now we will discuss if the baby temperature is less than 36.5. If it is less than 36.5, we will call baby is having hypothermia. If the temperature is more than 37.5 degrees Celsius, we will call hyperthermia. Got it? So what do you mean by hypothermia? When the newborn temperature it is less than 36.5 degrees Celsius, we will call baby is having hypothermia. Now we will discuss what are the effects of hypothermia on a newborn. So when the baby temperature it is decreased down, the baby will undergo into hypoglycemia because temperature is not maintaining. So temperature maintain नहीं होने की वजह से क्या होगा? बेबी फीड कम लेगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? बेबी में अंडरगो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, दैट मींस डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल. सेकंड थिंग इज बिकॉज जो ऑक्सीजन सप्लाई है बेबी के पास नहीं होगी, सर्कुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो बेबी विल अंडरगो इनटू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. There will be poor weight gain, myocardial dysfunction, shock, neurological injuries, coagulopathy, sepsis, hypoxia and apnea. So these are effects of hypothermia on a newborn. Physiology of thermoregulation. Thermoregulation का मतलब क्या है? How the temperature it is regulated in a newborn. So for children we will discuss about thermoneutral zone. That means थर्मो मतलब क्या है? टेम्परेचर. न्यूट्रल मतलब क्या है? वो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसके अंदर बेबी को एक्टिविटी जो बीएमआर है, जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं होता और बेबी इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर. तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मो न्यूट्रल जोन? थर्मो न्यूट्रल जोन का मतलब क्या है कि बेबी इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर रेंज इन द इन्वायरमेंट विथ मिनिमल activity on BMR, that is thermoneutral zone. It is mainly affecting or it is affecting on depends upon four factor. One is birth weight of the baby. Birth weight of the baby का मतलब है अगर बेबी 2.5 किलो का है, मतलब 2.5 से 3.5 किलो के बीच में, दैट मीन्स नॉर्मल टर्म बेबी है, तो उसको क्या होगा? वो जो टेम्परेचर रेंज होगी हमारी, वो होगी हमारी 26 से 28 डिग्री सेल्सियस पे भी वो मेंटेन कर लेगा. अगर बेबी का वेट 2 किलो से ज्यादा है तो द बेबी कैन मेंटेन द टेम्परेचर और थर्मोरेगुलेशन ऑन द टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस. अगर बेबी का वेट 1.5 से 2 किलो का है तो जो हमारा टेम्परेचर जोन है वो होगा हमारा 28 से 30 डिग्री सेल्सियस. इफ बेबी वेट इज लेस देन 1.5, सो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना, दैट शुड बी हमारा 32 डिग्री सेल्सियस. So it depends upon the birth weight and maturity of a baby. Second factor is postnatal age, कि बेबी की डे ऑफ लाइफ 1 है, 2 है, 3 है और उसका बर्थ वेट कितना है. नेक्स्ट इज क्लोथिंग, कि कितनी कवरिंग हमने बेबी को पहना रखी है. So it depends, the thermoneutral zone it is depending on 4 factor: birth weight, postnatal age, clothing and degree of sickness, कि अदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उसको है नहीं है, बेबी की कितनी फीड चल रही है, या फिर कोई उसको मतलब फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, ये कोई अदर रिस्क फैक्टर तो है नहीं. सो थर्मोन्यूट्रल जोन इट इज डिपेंडिंग ऑन 4 फैक्टर: बर्थ वेट, पोस्टनेटल एज, क्लोथिंग एंड डिग्री ऑफ सिकनेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन और मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ न्यूबॉर्न. So when we are talking about methods of heat transfer means either the heat it is lost or heat it is gained. So there are 4 methods. Method of heat loss or gain. For both there are 4 methods. So we will show or we will learn how we will run them. Okay. For example, this is a baby who is lying down on a surface.
सॉरी जो ड्राइंग है वो मेरी ऐसी ही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। दिस इज अ बेबी हु इज lying down. So there are four methods of heat loss and heat gain. First is conduction. Second is radiation. Third is convection. And fourth is evaporation. So there are four methods of heat loss and heat gain in a newborn. We will discuss one by one. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन का मतलब क्या है? एयर करंट्स। फॉर एग्जांपल जो जिसके अंदर मदर और बेबी लाई डाउन है, या फिर जो नर्सरी है, या फिर जो मैटरनिटी वार्ड है, उसका जो रूम है वो डोर्स ओपन है, फिर विंडोज एसी ये हमारे चल रहे हैं, तो क्या होगा? जो ठंडी हवा आएगी वो क्या करेगी? हमारे रूम के टेम्परेचर को क्या करेगी? कम डाउन करेगी। तो कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? बेबी का टेम्परेचर ऑल्सो फॉल डाउन। तो इफ द हीट लॉस और हीट गेन मेथड विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स, ठीक है, ठंडी हवा की वजह से पंखे खुले हैं या फिर खिड़की खुली है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ठंडी हवा अंदर आ रही है, उसकी वजह से क्या होगा? हीट लॉस और हीट गेन होगा। तो दिस मेथड इज कन्वेक्शन मेथड। गॉट इट? सेकंड इज कंडक्शन। कंडक्ट कब होती है? कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर कोई भी एनर्जी है, कब कंडक्ट होगी? जब वो किसी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी। So that is conduction. For example, when we are taking weight for a baby, तो हमने बेबी को क्या किया? लाई डाउन करा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर कोई हमने वार्म क्लॉथ नहीं लगाया है, तो बेबी को लाई डाउन करा दिया, तो जो क्लॉथ है वो कोल्ड है, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा हीट लॉस होगा। सो दिस इज कंडक्शन। तो व्हेन वी आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट, सो दैट इज कंडक्शन। थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या होता है? रेडिएशन का मतलब क्या है कि कहीं से एनर्जी वो हमारी आ रही है, तो हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कम डाउन होगा, तो जो हमारी एनर्जी होगी, इसका मतलब क्या है? कोल्ड ऑब्जेक्ट से क्या होगा? हमारे रूम के अंदर एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो रहा है। सो जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए? मैटरनिटी वार्ड का, लेबर रूम का या नर्सरी का एटलीस्ट 26 to 28 डिग्री सेल्सियस। तो रेडिएशन के अंदर फॉर एग्जांपल कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अलमारी है, या फिर कोई भी जैसे जो स्टील वाले ड्रम होते हैं हमारे, वो हमारे क्या करते हैं? कोल्ड को जनरेट करते हैं। सो दिस शुड नॉट बी देयर एंड दीज आर मेथड ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन। एंड द फोर्थ मेथड इज इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर कब होता है? तो जब कभी हम मतलब हमें पानी मिलता है तो उसके जब वेपर बनते हैं, हम उसी को तो इवापोरेशन बोलते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल बेबी लाई डाउन ऑन अ वेट सरफेस, या फिर बेबी जब डिलीवर हुआ उस टाइम एमनियोटिक फ्लूइड है, हमने बेबी को ड्राई किया और वेट क्लॉथ के अंदर हमने उसको लिटा के रखा है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो हमारे पास इवापोरेशन मेथड। सो दीज आर फोर मेथड ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन। कन्वेक्शन विद द हेल्प ऑफ एयर करंट्स, कंडक्शन व्हेन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, इवापोरेशन विद द वेट, ठीक है, वेट या फिर वाटर जो हमारे वेपर्स है, जो हमारी मोइस्ट है, उसको वेपर्स में जब कन्वर्ट होंगे, दैट इज इवेपोरेशन। रेडिएशन थ्रू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो दीज आर फोर मेथड ऑफ हीट लॉस। अब हम बात करेंगे हम हीट गेन कैसे करेंगे विद दिस, बाय अवॉइडिंग दिस मेथड, या फिर हम इन मेथड्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे। कंडक्शन के लिए हमने बात की, फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन पे जब भी हम बेबी को वेट लेंगे तो एक क्लॉथ को बिछाएंगे जो हमारा प्री वार्म क्लॉथ होगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है? इवापोरेशन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? व्हेनेवर वी आर रिसीविंग अ बेबी, जब भी बेबी को रिसीव करना है, रेडिएंट वार्मर को ऑन करके रखना है, ठीक है, 15-20 मिनट्स प्रायर बेबी को रिसीव करना है, वो हम प्री वार्म क्लोथ के अंदर रिसीव करेंगे। व्हेनेवर वी आर ड्राइंग द बेबी, तो जो वेट शीट है उसको हमें हटा के ड्राई शीट को अप्लाई करना है। सो दीज आर सम मेथड्स फॉर टू प्रिवेंट इवापोरेशन, टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय इवापोरेशन मेथड। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जो रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, फैंस और एसी हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, दे विल बी सेट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट टेम्परेचर। और क्या हो सकता है? डोर्स को क्लोज करके रखना है, विंडोज भी हमारी क्लोज होनी चाहिए, और रूम का टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कम है तो हम क्या करेंगे? एडिशनल हीटर्स हम अप्लाई करेंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा? हम कोल्ड सरफेस से मदर की जो कोट है, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी वार्ड्स के अंदर क्या होता है कि मदर की कोट दीवार की साइड होगी,
तो हम उससे क्या करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, उसको हम कहीं और प्लेस में रखेंगे। सो दीज आर मेथड ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन। आगे समझ, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हाउ द टेम्परेचर इट इज रेगुलेटेड इन अ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जो मेनली हाइपोथर्मिया है वो हमारे प्रीटर्म बच्चों के अंदर मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि टर्म बच्चे हैं वो तो हमारा उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा डेवलप होता है, लेकिन जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनके अंदर डेवलप नहीं होता है। तो फिर हम बात करेंगे जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो हमारे प्रीटर्म बच्चों के अंदर है। तो होता क्या है हमारा प्रीटर्म बच्चों के अंदर, प्रीटर्म बेबीज दीज आर मोर रिस्क टू गेट हाइपोथर्मिया, दीज आर मोर रिस्क। प्रीटर्म बेबी का मतलब क्या है, जो हमारे 36 से 42 हफ्ते से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, जो नॉर्मल गेस्टेशनल एज है वो हमारे 37 to 42 वीक्स है। इफ द बेबी इज बोर्न बिफोर 37 वीक्स वी विल कॉल दैट द बेबी इज प्रीटर्म, ओके। नाउ तो जो प्रीटर्म बेबी है वो हमारे ज्यादा रिस्क पे है टू गेट हाइपोथर्मिया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई। बिकॉज जो प्रीटर्म बेबीज है उनके अंदर होती है डिक्रीज ब्राउन फैट, decrease brown fat and decrease subcutaneous tissue, decrease brown fat, decrease subcutaneous tissue। इनके अंदर क्या होता है, insensible water loss, insensible water loss क्या होता है इनका ज्यादा होता है। और क्या होता है, इनकी जो बॉडी सरफेस एरिया है, बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वेट इन केजी, ठीक है। सो दीज आर थ्री मेन कॉज व्हाई दीज प्रीटर्म बेबी दे आर एट रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। पहले अब हम बात करेंगे ब्राउन फैट क्या होती है। ब्राउन फैट इट इज अ साइट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन अ न्यूबॉर्न। जो ब्राउन फैट होती है वो हमारे कहाँ का प्रेजेंट होती है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे, किडनीज के अंदर, इंट्रास्कैपुलर रीजन एंड इन द एक्जिला। सो दीज आर द एरियाज वेयर ब्राउन फैट इट इज प्रेजेंट। होता क्या है, हमारी ब्राउन फैट वो हमारी होती है डिक्रीज होती है, कम होती है। तो होता क्या है ब्राउन फैट, ब्राउन फैट के अंदर से जब ब्लड हमारा सर्कुलेट करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्राउन फैट है, जब यहाँ से ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वो होता है हमारा वार्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अगर ब्राउन फैट कम है, ब्राउन फैट कम है तो क्या होगा, ब्लड गया, वार्म तो हुआ लेकिन वो कम डाउन हुआ, ठीक है। तो बच्चों के अंदर ब्राउन फैट हमारी कम होती है, तो फिर हीट प्रोडक्शन है, तो उसके अंदर मतलब जो टेम्परेचर मेंटेन रेगुलेशन के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ब्राउन फैट के अंदर हमारा जो ब्लड है वो चला गया, ब्लड वार्म हुआ, ठीक है। तो वो वार्म ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से उनका थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। लेकिन प्रीटर्म बच्चों के अंदर ब्राउन फैट और भी कम होता है टर्म बच्चों की बजाय, तो इसलिए उनके अंदर हाइपोथर्मिया से हमें ज्यादा प्रिवेंट करना है। सेकेंड थिंग क्या है, जो प्रीटर्म वाले बच्चे हैं उनके अंदर मैकेनिज्म होता है नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग का मतलब क्या है, देखो अडल्ट है जब उनको ठंड लगती है तो क्या होता है, वो कांपने लग जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हैं वो कांपते नहीं है, तो उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि बिना शिवर किए ही वो थर्मोजेनेसिस मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउन फैट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि साइलेंट किलर इन अ न्यूबॉर्न इज हाइपोथर्मिया। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो देखो छोटे बच्चे हैं, प्रीटर्म बच्चे हैं, तो प्रीटर्म बच्चों का क्या पोस्चर होता है, एक्सटेंडेड होंगे, हाथ ऊपर पैर साइड में, ऐसे एक्सटेंडेड पोस्चर होगा। तो एक्सटेंडेड पोस्चर होने का मतलब क्या है कि जो इवेपोरेशन के थ्रू हीट लॉस ज्यादा होगा, अगर एयर कंडक्ट है या रेडिएशन के थ्रू उसका क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे शिवर नहीं कर पाते, तो जो हीट लॉस होता है या फिर हीट गेन होगा वो हम मेंटेन करेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से। क्योंकि ब्राउन फैट है वो हमारा कम होता है तो शिवर नहीं कर पाते, तो जो उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है वो हमारा किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ ब्राउन फैट, जो हीट प्रोडक्शन करते हैं जितना भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, किडनीज के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, और हमारी स्कैपुलर रीजन के अंदर और एक्जिला के अंदर प्रेजेंट होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारी कम होती है, तो इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन कम होता है। सेकंड इज इनसेंसिबल वाटर लॉस, वाटर लॉस ज्यादा होता है क्योंकि जो प्रीटर्म बच्चे हैं उनका जो पोस्चर होगा वो तुम देखोगे ऐसे एक्सटेंडेड पोस्चर मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनकी बनी हुई होती नहीं है, जो पोस्चर नॉर्मल टोन्स होती नहीं है, तो एक्सटेंडेड पोस्चर होगा, तो उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वेट होगा कम,
तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा हीट लॉस ज्यादा होगा. So these are some causes or why the preterm babies they are at risk to get hypothermia. How to prevent hypothermia in the newborn? So there are 10 steps that we will maintain in warm chain. The first step is keep the room warm. So we have to maintain the temperature of a room where the delivery it has been taken place, where the baby has been shifted, or in the maternity ward, in the NICUs, or in the step down nursery. So what we have to do, we have to maintain the room temperature. So the normal room temperature for a nursery maternity ward it should be 26 to 28 degrees Celsius. If there are winters, तो हम क्या करेंगे, हीटर्स को ऑन करेंगे, ठीक है. और अगर बेबी सिक है, नर्सरी है, तो देयर शुड बी रेडिएंट वार्मर और रिसीविंग द बेबी इन प्रीहीटेड लिनन. सेकंड इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होगा, व्हेनेवर द मदर एंड द बेबी दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन रहेगा. दैट मींस हाइपोथर्मिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जिसके अंदर हमारी क्या आती है, केएमसी, दैट इज कंगारू मदर केयर. नेक्स्ट इज वार्म रिससिटेशन. वार्म रिससिटेशन का मतलब क्या है, व्हेनेवर अ बेबी इज बोर्न, तो जब भी हम बेबी को रिसीव करेंगे वो हम एक प्री हीटेड टॉवल के अंदर, प्री हीटेड क्लॉथ के अंदर रिसीव करेंगे. रेडिएंट वार्मर को हम 15-20 मिनट्स ऑलरेडी हम ऑन करके रखेंगे, ताकि जो, और उसके नीचे 2 टॉवल्स रखेंगे ताकि हम बेबी को रिसीव करें तो वो प्री हीटेड उसके अंदर हम रिसीव करें. सेकेंड थिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल द डिलीवरी इट इज टेकिंग प्लेस, तो वी हैव टू रिसीव द बेबी इन अ प्री हीटेड ड्राई टॉवल. फिर जो हमने बेबी को लिया वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ था, हम इसको क्या करना है, बेबी को ड्राई करना है. ड्राई करके जो वेट क्लॉथ होगा उसको हमें रिमूव करके डंप करना है, और हमें बेबी को जो दूसरा क्लॉथ है उसके अंदर जो प्री हीटेड है उसके अंदर हमें बेबी को रैप करना है. दैट इज वार्म रिससिटेशन. नेक्स्ट इज इमीडिएट ड्राइंग. इमीडिएट ड्राइंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि whenever the delivery it is taking place, receive the baby in a preheated cloth, और उसके बाद हमें क्या करना है, immediate dry. बेबी को क्लोथ मतलब हेड कवर करना है, फिर शूज और सॉक्स पहना के, और हमें बेबी को कवर करके मदर के एब्डोमेन पे लिटाना है, और ब्रेस्ट स्क्रॉल के लिए हमें देखना है. विद इन 1 hour द बेबी विल रीच टू द ब्रेस्ट बाय यूजिंग द स्मेल टेक्निक एंड द स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग. नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months ऑफ एज. तो जिसके अंदर हम देखेंगे कि बेबी को क्रोल करते हुए ब्रेस्ट क्रोल, एंड दैट द मदर इज रेडी टू गिव द मिल्क टू द बेबी. ठीक है. नेक्स्ट इज पोस्टपोन बाथिंग. बाथिंग को हम 24 आवर्स के लिए पोस्टपोन करेंगे. आफ्टर दैट उससे क्या हम क्यों वो करेंगे, क्योंकि जैसे कैसिक्स है या फिर ये 1 वीक्स होता है हमारा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसके इसलिए हम पोस्टपोन करेंगे बाथिंग को टिल 24 आवर्स. नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट क्लोथिंग. अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस हमें क्या करना है, बेबी को एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनानी है. बेबी को कवर करके रखना है, हेड को और जो हमारी हैंड्स है और फीट को हमें क्या करना है, कवर करके रखना है. ठीक है. नेक्स्ट कीप विद द मदर. तो जब बेबी मदर के साथ रहेगा तो क्या होगा, एक तो उसकी फॉर एग्जांपल बेबी का वेट कम है तो केएमसी होती रहेगी, मदर के कांटेक्ट में रहेगा, फीड लेगा, तो उससे उसका वेट गेन होगा, इन्फेक्शन से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो दैट इज रूमिंग इन सर्विसेज वी हैव टू फॉलो. Warm transportation. So whenever we are transferring the baby from one hospital to another hospital or from one area to the another area, तो हमें warm transportation को कैरी करना है. तो how we will carry, फॉर एग्जाम्पल बेबी सिक है तो इंक्यूबेटर्स के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करना है. इंक्यूबेटर्स के अंदर हमारे पास टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 मोड है, मैनुअल मोड एंड द एयर मोड. ठीक है. तो इंक्यूबेटर्स के अंदर हम उनको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बेबी स्टेबल है या फिर बेबी लो बर्थ वेट है, हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट और केएमसी के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. अगर मदर केएमसी भी नहीं करा रही है तो फिर हमें क्या करना है, बेबी को अच्छे से कवर करना है, रैप करना है, उसके बाद हमें बेबी को ट्रांसपोर्ट करना है. इफ द बेबी इज लेस देन 32 वीक्स, लेस देन 32 वीक्स की डिलीवरी है, तो उसमें हमें क्या करना है, बेबी को हमें कवर करना है. उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक रैप आते हैं, उसके अंदर बेबी को कवर करना है, और बेबी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे इंक्यूबेटर और जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज है उसके थ्रू होना चाहिए. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स. तो उनको हमें ट्रेनिंग किस बारे में देंगे कि व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग द बेबी, तो दैट शुड बी वार्म ट्रांसपोर्टेशन.
सेकेंड थिंग क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, केएमसी के बारे में, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बारे में, रूम टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें वी हैव टू ट्रेन आवर स्टाफ एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स. सो दिस वे we will prevent hypothermia in the newborn. Now we will discuss what do you mean by hypothermia, types of hypothermia, what are the signs and symptoms in them, and how we will manage them. Now we will discuss hypothermia की क्या classification है. So the normal temperature is 36.5 to 37.5. That means the temperature is normal और ब्रेस्ट फीडिंग मदर करा सकती है, स्किन टू स्किन और रोमिंग इन सर्विसेज फैसिलिटीज ले सकती है. सेकेंड इज इफ द टेम्परेचर इज बिटवीन 36.5 to if the temperature is between 36 degree Celsius till 36.4 degree Celsius, we will call babies having mild hypothermia, also known as cold stress. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बेबीज की हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट द बेबी इज हैविंग कोल्ड स्ट्रेस और माइल्ड हाइपोथर्मिया. देखो बिल्कुल थोड़ी सी टेम्परेचर रेंज कम है, लेकिन उसकी वजह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. इट इज दैट मींस इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि हमें देखना है कि क्यों है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट इज अ माइल्ड हाइपोथर्मिया एंड कॉज ऑफ कंसर्न. तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई बेबीज हैविंग माइल्ड हाइपोथर्मिया. तो जो बेबी होगा ना उसकी पेरिफ्रीज दैट मींस उसकी एक्सट्रीमिटीज होंगी कोल्ड एंड जो बेबी का एब्डोमेन होगा वो होगा हमारा वार्म होगा. सो दैट मींस द बेबी इज अंडर कोल्ड स्ट्रेस. तो व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर कोल्ड स्ट्रेस? दैट मींस maintaining the room temperature, keeping the baby under the warmer skin to skin contact, breastfeeding and reassessing the baby in 1 hour. So this is the management for cold stress. Got it? Next, second is moderate hypothermia. Moderate hypothermia में क्या है, जो temperature, if the baby temperature is between 35.9 degree Celsius till 32 डिग्री, मतलब 32 से 35.9 के बीच में अगर टेम्परेचर है, बेबी इज हैविंग मॉडरेट हाइपोथर्मिया. मॉडरेट हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर वो ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गया, दैट मींस डेंजर है बच्चे के लिए. अब तो दैट मींस वार्म इमीडिएटली. हमें बच्चे के लिए क्या क्या करना है, वार्म, दैट मींस रूम टेम्परेचर इट शुड बी मेंटेन. तो बच्चे के लिए हम वार्म कैसे प्रोवाइड करेंगे, आइदर बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट. इफ अगर वार्मर अवेलेबल है तो वार्मर के नीचे रखेंगे और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हम अप्लाई करेंगे अगर वार्मर नहीं है तो. फिर स्किन टू स्किन कंगारू मदर केयर से क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन होता है. ब्रेस्ट फीडिंग को हम मॉनिटर करेंगे, ब्रेस्ट फीड हमें देनी है इफ द बेबी इज टेकिंग फीडिंग. ठीक है, फिर उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा तो हमें क्या करना है, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है, विटामिन के एडमिनिस्टर करना है इफ इट हैज नॉट बीन गिवन, and monitor the baby in every 15 minutes. So how we will identify that the baby is having a moderate hypothermia? तो बेबी जो लिथार्जी होना शुरू हो जाएगा, फीड लेना बंद कर देगा, मतलब ये साइलेंट सिम्टम्स है, एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी. बेबी की जो पेरिफ्रीज है वो हमारी क्या होगी, कोल्ड होगी, एब्डोमेन भी हमारा कोल्ड लगेगा. ठीक है, अब सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है, बेबी की जो फुल बॉडी है वो हमारी क्या होगी, साइनोज हो जाएगी फुल बॉडी, और बेबी की एक्सट्रीमिटीज और एब्डोमेन दोनों क्या होंगे, कोल्ड टू टच होंगे. दैट मींस द बेबी इज हैविंग सीवियर हाइपोथर्मिया. तो उसके लिए हमें क्या करना है, आउटलुक, दैट मींस स्किल केयर इज नीडेड, बेबी मे नीड रिससिटेशन. तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, आईवी फ्लूइड्स दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड, रैपिड रिवार्मिंग, हमें बेबी को क्या करना है, रैपिड रिवार्म करना है टिल 34 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना है, रैपिड रिवार्मिंग. उसके बाद हमें क्या करना है, स्लो वार्मिंग. अब बात है हम रैपिड रिवार्म कैसे करेंगे, हीटर्स होते हैं, ऑयल हीटर्स होते हैं, तो फिर उससे हम क्या करेंगे, रिवार्म करेंगे बेबी को. दूसरी क्या, हम रेडिएंट वार्मर के नीचे रखेंगे, जो हमारी कॉटन होती है, कॉटन को गर्म करके बेबी के चारों साइड में लपेटेंगे ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे. फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, आईवी फ्लूइड्स हम उसको लेंगे क्योंकि बेबी के अंदर साइनोज हो गया है. ठीक है, रैपिड रिवार्मिंग टिल 34, आफ्टर देन स्लो वार्मिंग, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे एंड ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करेंगे. इफ विटामिन के इट हैज नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड अर्ली, तो हम विटामिन के देंगे टू प्रिवेंट कोगुलोपैथी इन न्यूबॉर्न. So this is the classification of hypothermia in newborn.
Hope so you guys understood hypothermia class from this video. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.